ٹی وی اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ریاست کے وزیر برائے سیاحت و ممبر اسمبلی ڈورو شاہ آباد غلام احمد میر نے آج اننت ناگ کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور برف باری سے پیدا شدہ حالات کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈورو میں سرکردہ شہریوں کی ایک میٹنگ بھی طلب کی اور علاقے میں لوگوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا اور عید میلاد النبی کی تقریبات کے سلسلے میں لوگوں کی رائے بھی حاصل کی۔ اس موقع پر جی اے میر نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ان ایام کے دوران لوگوں کی مشکلات کے ازالے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں۔ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، زیادہ تکلیف نہ ہو۔ برف میں تو تکلیف ہوتی ہے ونٹر میں، مگر زیادہ تکلیف نہ ہو، خاص کر بجلی، پانی، سڑک اور راشن کے معاملے میں۔ تو جو میں نے آفیسرز کی میٹنگ لی اس میں مجھے کافی اطمینان بخش رزلٹ یہاں پر ملا۔ تو لوگوں کو بھی میں نے اپیل کی کہ ایسے موسم میں صبر تحمل کا خیال رکھیں، اس سے کام لیں، اور خاص کر جو یہ عید میلاد النبی کے دن چل رہے ہیں۔ دیہی ترقی کے وزیر علی محمد ساگر نے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ دھوبی گھاٹ حضرت بل کے حالیہ آگ سے متاثرین کی جلد بازآباد کاری کو یقینی بنائے۔ علی محمد ساگر نے آج دھوبی گھاٹ حضرت بل سری نگر جا کر متاثرین کو امدادی سامان بھی فراہم کیا۔ لوک جن شکتی پارٹی کے یووا مورچہ کے قومی صدر سنجے سراف نے حباکدل انتخابی حلقے میں ناقص ڈرینیج نظام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے کے ڈرینیج نظام کو درست کیا جائے۔ سنجے سراف نے علاقے کے دورے کے دوران عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امور صارفین محکمے پر زور دیا کہ علاقے کے راشن گھاٹوں پر غذائی اجناس کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ ہمارے ڈرینیجز کی حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں کیسی ہے۔ ڈرینیجز کے یہاں پر جو اور پٹس لگے ہیں، ڈھکن نہیں ہے یہاں پر۔ برف باری کے بعد میں جہاں یہاں پر راشن ڈیپوز کی پرابلمز ہے، راشن ڈیپوز میں کھلا چاول نہیں عام آدمی کو مل رہا ہے۔ بجلی میں تو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہو رہا ہے۔ کیپٹل میں بھی اگر ہم لوگ 24 گھنٹے بجلی نہیں دے سکتے تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ پروسیس چلا رہے ہیں۔ ککروسا ہندواڑہ کے اسپتال میں طبی عملے کی مبینہ عدم دستیابی اور درد ذیل میں مبتلا خاتون کے سرراہ بچے کو جنم دینے کے واقعے کا سنجیدہ نوٹس لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے آج خود علاقے کا دورہ کیا اور معاملے کی تحقیقات کے احکامات صادر کیے۔ ہسپتال میں پہنچ گئے تو ہسپتال میں کوئی اسٹاف اس وقت موجود نہیں تھا، تو اسٹاف سے نے پوچھا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فوج نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے 6 سے میں ٹیک اپ کروں گا، ہم فوج سے بات کریں گے انہوں نے کیوں نہیں چھوڑا بیماروں کو، یا ڈاکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں چھوڑا۔ جو پیشنٹ ہے اس کے جو تیماردار تھا ان سے میں نے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ فوج نے ہمیں روکا باہر، جس کی وجہ سے یہ سچویشن ہو گئی۔ میں اور ڈی سی صاحب یہاں پر اس لیے آئے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا ہوا ہے، جبکہ پیشنٹ کو 1.5 گھنٹے آرمی نے رکایا ہے تو ڈاکٹر کو کہاں چھوڑیں گے۔ باری کے بعد کپواڑہ میں طبی نظام کی پول کھولنے کے لیے یہ واقعہ انتہائی کافی ہے کہ ہسپتال میں ککروسا ہسپتال میں طبی عملے کی نایابی کے دوران زردی زخم میں مبتلا خاتون سرے راہ اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے مجبور ہو گئی۔ یحییٰ سلطان، ای ٹی وی نیوز، ککروسا، ہندواڑہ۔ سری نگر سمیت کشمیر وادی کے کچھ علاقوں میں آج صبح تازہ برف باری ہوئی۔ تازہ برف باری کے دوران جموں سری نگر قومی شاہراہ کھول دی گئی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شاہراہ پر کل صرف درماندہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی۔ ادھر وادی کے دیگر علاقوں کی طرح ضلع کلگام میں بھی بھاری برفباری ہوئی۔ پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی برفباری کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے اور لوگوں کو کافی مشکلات پیش آئیں۔ ضلع کے دور دراز علاقوں میں جن میں دمہال، ہانجی پورہ، کنڈ قاضی کنڈ، ڈی کے مرگ، لامد وغیرہ شامل ہیں، کل بھی برفباری سے زندگی متاثر ہوئی تھی۔
اور عام طور پر کشمیر میں نئے سال کے کیلنڈرز جاری کرتے وقت سرکاری اور تجارتی ادارے وادی کشمیر کی قدرتی خوبصورتی کو منظر عام پر لاتے ہیں. تاہم سری نگر کے ایک ہوٹل مالک منفرد انداز کے کیلنڈر سامنے لاتے ہیں. وسیم احمد کشمیر کے تاریخی اہمیت کی تصاویر کو اپنے کیلنڈر میں چکھا دیتے ہیں. پچھلے 7 سال سے وسیم احمد ان نایاب تصاویر کو کیلنڈرز کی صورت میں لوگوں کے سامنے لاتے رہے ہیں جو کہ عام طور پر کہیں نہیں ملتی. وسیم احمد کا کہنا ہے کہ یہ قدم اٹھانے کا واحد مقصد لوگوں کو اپنے قیمتی ورثے کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا ہے. یہ چھوٹا سا ایک مومنٹو جیسا رکھا ہے جس سے کہ لوگ ایٹ لیسٹ کچھ فوٹوگرافس کو اپنے پاس رکھ کے ان کو دیکھ کے سمجھ سکیں کہ ہم لوگ کہاں تھے اور کہاں ہیں. رسپانس تو بہت اچھا رہا ہے. پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا جو آتا تھا لکھ کے چلا جاتا تھا کاٹنے کے لیے, لیکن اب تھوڑا سا شعور بڑھ چکا ہے. اب جو بھی آتا ہے اسے پتا ہے وہ کیا لینے آ رہا ہے. سینئر کانگریس لیڈر اور ایم ایل اے اندروال غلام محمد سروری نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ برف باری سے متاثرہ علاقے میں جلد از جلد بجلی اور پانی کی سپلائی بحال کی جائے. انہوں نے آج کشتواڑ کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کی مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. وحید پورہ گاندربل میں پی ڈی پی کارکنوں کا کنونشن منعقد ہوا. اس موقع پر پی ڈی پی کے سینئر لیڈر قاضی افضل کی موجودگی میں حلقہ صدر غلام محمد ڈار سمیت نیشنل کانفرنس کے کچھ کارکنوں نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی. ادھمپور کے انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم میں ڈسٹرکٹ ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن کی جانب سے دیویندر شرما میموریل ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ منعقد کی گئی. 120 کھلاڑیوں نے اس چیمپئن شپ میں حصہ لیا. اس چیمپئن شپ کا مقصد ادھمپور میں ٹیبل ٹینس کو فروغ دینا ہے. اس ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن کا وائس پریزیڈنٹ ہوں اور یہ ہم دیویندر شرما جی کے نام سے ٹورنامنٹ ہم کروا رہے ہیں جو کہ ہر سال ڈسٹرکٹ ادھمپور میں یہ ٹورنامنٹ کروائی جاتی ہے. ان کی یاد میں یہ ٹورنامنٹ کروائی جاتی ہے. ان کا کافی یوگدان رہا دیویندر شرما جی کا اس ٹیبل ٹینس. جموں کشمیر کے وزیر خزانہ عبدالرحیم راتھر نے آج جموں میں معروف مصنف رسا جاودانی کی کتاب کلیات رسا جاودانی کی رسم رونمائی انجام دی. جموں یونیورسٹی کی شعبہ اردو کی جانب سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا. شہید ہمراج نامی فوجی جوان کی مبینہ ویڈیو کے سامنے آنے پر ریاستی بی جے پی نے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جموں میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریاستی بی جے پی کے صدر جگل کشور نے سرحد پر دہشت گردی کے تئیں حکومت کے نرم رویے کی نکتہ کی. ضرورت ہے وہاں پر تو جاتے نہیں اور جہاں دوسرا ضلع جو ہے وہ سوسائٹی فار ہیموفولیا نے ریاست میں بنیادی طبی سہولتوں کی عدم فراہمی پر تشویش کا اظہار کیا. جموں میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایس ایچ سی کے دیگر ایگزیکٹو ڈائریکٹر وجے کول نے کہا کہ حکومت ہائی کورٹ کے حکم نامے کی مخالفت کر رہی ہے اور اس جانب حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے وہ قانونی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. بلٹن میں فی الحال اتنا ہی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیے خاص بات سید احمد جیلانی کے ساتھ. آداب. کشمیر بلٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ. سستا نہیں سب سے اچھا. میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. دنیا اپڈیٹ خبروں کا نیا اور انوکھا شو جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ. جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر. دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران.
तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया मसला आया तो इसलिए आप उस चीज को जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। ट्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। अक़लियती नौजवानों को गिरफ्तार करते वक्त एहतियात बरती जाए, वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने तमाम रियासतों के वज़राए आला को भेजे मकतूब। मुजफ्फरनगर मामले पर दिल्ली में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और आजम खान का पुतला नजर आतिश। मुजाहिरीन ने किया उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत को बर्खास्त किए जाने का मुतालबा। और फरका वाराना फसाद बिल को पास कराने में कांग्रेस की नीयत दुरुस्त नहीं, AIUDF के रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने भी लगाया इल्जाम। पहले बड़ी खबर। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने रियासती हुकूमतों को अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को गिरफ्तार करते वक्त एहतियात बरतने की हिदायत दी है। इस ज़िम्न में शिंदे ने तमाम वज़राए आला को एक मकतूब रवाना किया है। दूसरी जानिब कुछ मुस्लिम रहनुमाओं ने जहां शिंदे के बयान का खैर मक़दम किया तो वहीं कुछ ने इसे सियासी बयान करार दिया है। आम इंतखाबात का वक्त करीब आते ही कांग्रेस को एक बार फिर अक़लियतों की याद सताने लगी है। हुकूमत अक़लियतों को लुभाने वाली बातें करती नजर आ रही है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की गिरफ्तारी से कबल रियासती हुकूमतों को काफी एहतियात बरतनी चाहिए। इस ज़िम्न में शिंदे ने तमाम रियासतों के वज़राए आला को मकतूब रवाना किया है। वजीर दाखिला ने बताया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी की तश्कील हुकूमत के ज़ेर गौर है। शिंदे के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी इंसदाद बदनवानी एक्ट के खतूत पर मबनी होगी। We have already written to all the state chief ministers. You should be careful in arresting the youth of minority that I had said in my letters. Minority doesn't mean one particular community, but all those who are concerned, they are minority. दूसरी जानिब कुछ मुस्लिम लीडरों ने शिंदे के बयान का खैर मकदम किया है तो कुछ ने इसे सियासी बयान करार दिया। गृह मंत्री साहब ने जो बयान दिया है हम उसको वेलकम करते हैं। हमारी लड़ाई बहुत जमाने से चल रही है। हम लोग PCPT के नाम से सारी सेकुलर फोर्सेज ये बात कर रही थी कि जो आप इन लोगों को पकड़ते हैं 10 साल 12 साल 15 साल के बाद अदालतों से छूटते हैं और ये कहा जाता है कि नॉट फाउंड गिल्टी।
लेकिन अभी जो हमको लगता है गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है और मुस्लिमों के यूथ के हित की चिंता कम है। और इसका जिस तरह से ये बोल रहे हैं, इस बोलने का फायदा जो बीजेपी और संघ परिवार उठाएगा और वो दूसरी तरफ प्रचार करेगा, गलत प्रचार करेगा, तो मुस्लिम यूथ को तो राहत भी नहीं मिलती है या गरीब लोगों को जो भी है उनको कोई राहत भी नहीं मिलती है और उसका दुनिया भर का अपोजिट पब्लिसिटी हो जाती है और उनका और नुकसान ही होता है। उधर अपोजिशन बीजेपी ने शिंदे के इस बयान को अक्सरियत और अकलियत में तफरीक करने वाला करार दिया। गुनाह कोई करता है तो वो गुनहगार है, उसको पकड़ना है। उसमें जात देखो, उसका सर्टिफिकेट देखो, उसका मजहब देखो। ये सुशील कुमार जो कह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, ये घिनौनी राजनीति है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। काबिल गौर बात है कि गुज़िश्ता बरस भी सुशील कुमार शिंदे ने इसी तरह का मकतूब तमाम वज़राए आला को रवाना किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मुजफ्फरनगर फसादात मामले पर दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके के आजाद चौक पर बाद नमाज जुमा बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खान का पुतला भी नजर आतिश किया गया। कौमी एकता कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्कदा इस मुजाहरे में मुजाहिरीन ने अपने गुस्से का जमकर इजहार किया। दिल्ली के आजाद मार्केट चौक पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर फसादात के बाद वहां की हुकूमत का जो रवैया रहा है उससे नाराज है यहाँ के लोग और यहाँ पे कौमी एकता मंच के बैनर तले ये एहतजाज प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं उसके जिम्मेदारान। किस डिमांड के साथ आप अब्दुल वही साहब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यह है कि ये लोग यूपी के अंदर मुसलमानों के साथ और भी लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं और अपने आप फंक्शन मना रहे हैं जिसके अंदर 300 करोड़ रुपए खर्च करा है। वहाँ के लोगों के लिए सर्दी के अंदर लोग बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारा ये मुतालबा है कि ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार के खिलाफ हमारा गुस्सा है, इसको बर्खास्त किया जाए। हमारे साथ पूर्व विधायक भी यहाँ के मौजूद हैं, राजेश जैन साहब। राजेश जैन साहब, जिस तरह से मुजफ्फरनगर का पूरा फसादात आपने देखा है, उसके बाद वहाँ के कैबिनेट मंत्री बाहर गए हैं, आपको मालूम होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, एक मुजफ्फरनगर के अंदर जो हालात पैदा हुए, उस हालात पैदा की हम सबसे पहले निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उसका हम विरोध करते हैं। देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत के साथ हम सब इकट्ठे रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अत्याचार हुए, जिस प्रकार से हालात खराब हुए, जिस प्रकार से वहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने कैंप लगाए और जो पीड़ित लोग थे वहाँ पर डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं थी, वहाँ पर रोटी रोजी के लिए लोग तरस रहे थे, वहाँ पर इलाज नहीं था, वहाँ व्यवस्था नहीं थी और यूपी गवर्नमेंट विदेशों को दौरा कर रहे हैं, वहाँ के कैबिनेट मंत्री विदेशों को दौरा कर रहे हैं, वहाँ के विधायक विदेशों को दौरा कर रहे हैं और जो पीड़ित लोग हैं वो वहाँ तरस रहे हैं, भड़क रहे हैं, भटक रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। उनको सहायता चाहिए। वहाँ की जो कौम है वो चाहती है कि वहाँ पर डॉक्टरों का, जो पीड़ित बच्चे हैं उनका इलाज हो, वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं उनका वहाँ पर सुविधाएं दी जाए। वहाँ पर और बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी यूपी गवर्नमेंट की बहुत हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, अखिलेश यादव की भर्त्सना करते हैं और उस गवर्नमेंट को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। यहाँ पर मौजूद है हमारे उस्मान साहब भी मौजूद हैं और यहाँ जो पुतला नजर आतिश किया जाना है उसमें आजम खान का भी है, उसके अलावा आजम BS यादव, मुलायम सिंह यादव और कौन कौन लोग हैं और क्या क्यों आप पुतला नजर आतिश कर रहे हैं? हम पुतला इसलिए दहन करना चाहते हैं कि यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर के जो पीड़ित हैं उन लोगों के शिविर तक उखाड़ दिए बुलडोजर चला करके और सफाई के अंदर फिल्म उत्सव मना रहे हैं जिसमें सलमान खान 3 करोड़ रुपए, माधुरी दीक्षित 1.5 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए के बजट से सफाई के अंदर वो फिल्म उत्सव मना रहे हैं। और विदेश के अंदर ऐसा कौन सा यूपी का सरकार जरूरी काम था जो 18 MLA वहाँ पर गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर गए, यूपी को बदलने यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि किस तरह से पुतला नजर आतिश किया जा रहा है। लोग बहुत गुस्से में हैं और इस गुस्से का से साफ जाहिर होता है
कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जो कुछ भी किया है वो बहुत अफसोसनाक है और ये आइंदा आने वाले इलेक्शन में इसका नतीजा हमें ऐसा लगता है यहाँ के लोगों के मुताबिक कि आइंदा इलेक्शन में इसका नतीजा इंतखाबात में एसपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं एहतशामुल हसन। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पर तनकीद का जवाब कुछ यूं दिया। अभी घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में उनसे पूछते हैं। अगर सवाल करना है मेरे से सवाल करो, मैं मुख्यमंत्री, मेरी सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। और एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा, राजनीतिक दल के लोग वहां गए भी, इनको भी मैंने कहा आप अगर इनको वापस पहुंचाना चाहते हैं, घर में रहें, ठंड लगे, सुरक्षित रहें। हम भी भेजना चाहते हैं, आप भी भेजना चाहते हो। और जो मदद सरकार कर सकती थी वो की है मदद सरकार ने, और बड़े पैमाने की मदद की है। देश में कहीं भी इस तरह की घटना हुई होगी, कहीं भी इतने बड़े पैमाने पे सरकार मदद करने के लिए आगे नहीं आई जितना समाजवादी पार्टी सरकार में आई। नहीं, आप याद करो मुजफ्फरनगर की प्रेस में मैंने कहा था कि जो चाहेंगे मैं उनको लोही आवाज दे दूंगा, कोई लोही आवाज मिलने के लिए तैयार नहीं। का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। लकड़ी क्यों? खुरपा नहीं है क्या? दीवार क्यों? स्लेट नहीं है क्या? तुम सही काम सही चीजों से क्यों नहीं करती हो? पर बाबा आप भी तो वही करते हैं। मैं कैसे? शौचालय होकर भी बाहर खेतों में जाते हैं। बच्ची तो सीख गई, और तू? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। खुद शौचालय का प्रयोग कीजिए और अपने गांव और देश को निर्मल बनाना सिखाइए। निर्मल भारत का निर्माण। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों पर खास तवज्जो दे रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी यूपी में खुसूसी मुहिम चलाने की शुरुआत की है। पार्टी ने मुस्लिम समाज के तालीम याफ्ता और बाशऊर तबके से राब्ते का काम शुरू किया है। कानपुर में मीडिया से बात करते हुए मुहिम इंचार्ज राशिद अली ने कहा कि रियासत के मुसलमान आम आदमी पार्टी को एक सियासी मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। अभी तक मुसलमानों की जहां तक बात है तो मुसलमानों को एक फुटबॉल की तरह यूज किया गया है भारतीय राजनीति में। हम कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सिर्फ एक हैवक बना रखा है हमारे अपने मुसलमानों, चूंकि मैं भी मुसलमान हूं और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग हूं। हम लोग इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि हमेशा इस चीज को डराया गया है कि कहीं बीजेपी न निकल जाए, तो ये इस चीज को दिमाग से निकालना होगा और उसमें जाकर के हमें कभी ऐसे कैंडिडेट को वोट देना पड़ता है, ऐसे कैंडिडेट को इख्तियार में लाना पड़ता है जो कहीं से सलाहियत नहीं रखता है तब भी। तो अब उस चीज से जब हम बाहर निकल आएंगे तो सारी चीजें हमारे लिए खुली हुई हैं। एक ये विकल्प के रूप में अगर ये पार्टी हमारे लिए आई है तो यहाँ सिर्फ कानपुर में यूपी में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अगर आप साउथ में जाकर देखें तो वहां पे भी जो मुस्लिम लिटरेट मुसलमान है वो इस पे आगे आ रहा है और वो इनकी आइडियोलॉजी को पसंद कर रहा है। लखनऊ में मुजफ्फरनगर जांच कमीशन के दफ्तर पर हथियारबंद अफराद के दाखिल होने और दस्तावेजात को साथ ले जाने की कोशिश के वाक़े पर मुस्लिम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने शदीद रद्दमल का इजहार किया। फेडरेशन के सदर सलीस अहमद का कहना है कि जांच कमीशन के दफ्तर में हथियारबंद लोगों के इस तरह से दाखिल होने और फसाद से मुताल्लिक फाइलें ले जाने की कोशिश एक संगीन वाकया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने और दफ्तर में दाखिल होने वालों की शनाख्त जाहिर करने का मुतालबा किया है।
कि फासिस्ट ताकतों के हौसले और उनकी उमंगें कहां तक के बढ़ चुकी हैं, जो आज सरकारी दफ्तरों पे हमला कर रहे हैं और वहां से फाइलें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हुकूमत को सोचने की बात है कि हुकूमत अभी तक के ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हो रही है। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम और करोड़ों अरबों रुपए की इमलाक की तबाही और तबाही के बावजूद अगर हुकूमत के कान खड़े नहीं हो रहे। आज हद यह है कि लखनऊ के अंदर दफ्तर पे हमला हो रहा है और उसके बाद अभी तक के उनको बताया नहीं जा सका कि ये कौन सी ताकतें, कौन लोग हैं। तो ये तो हमारी हुकूमत की सरासर नाकामी और नामुरादी जाहिर कर रही है। यकीनन इसकी जांच होनी चाहिए और वो लोग जो इसमें मुलव्विस हैं उनके ऊपर से नकाब उठनी चाहिए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुकने पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस फर्कावाराना फसाद मुखालिफ बिल को पार्लियामेंट में पास कराने में ईमानदार नहीं है। मगरबी बंगाल दौरे पर आए मौलाना अजमल ने कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अवाम खासतौर से मुसलमानों में कांग्रेस के तई नाराजगी में इजाफा हो सकता है, इसलिए कांग्रेस को बिल पास कराने में संजीदा इक़दाम करने चाहिए। बनर्जी की पार्टी, दो पार्टी ने उसके खुल के मुखालफत की है। ममता बनर्जी की पार्टी ने सारे चीजों को मुखालफत नहीं की है, कुछ चीजों में मुखालफत की। तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके बजाय कि वो 3 दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट बंद कर दिया। वाई जबरदस्ती लाते, जितने उनके मतलब के बिल है उन्होंने पास कराए। इसके बारे में उनके खुद अपने दिल में चोर है, ईमानदारी नहीं है, इसलिए वो लाना नहीं चाहते। उन्होंने 3 दिन पहले पार्लियामेंट बंद कर दिया। अब सुन रहे फरवरी में 15 दिन के फिर एक सेशन होने वाला है। इस बीच में चारों स्टेट के रिजल्ट आ गए, झटका लगा है, शायद वो ले आए उसको। दिल्ली असेंबली में जेडीयू के वाहिद रुकन असेंबली शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। काबिल गौर बात है कि शोएब इकबाल गुज़श्ता हफ्ते आम आदमी पार्टी की तनकीद कर रहे थे। कुमार विश्वास के मुतनाज़ा वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद वो आम आदमी पार्टी से हिमायत वापस लेने की बातें कर रहे थे। कुमार विश्वास की माजरत ख्वाही के बाद शोएब इकबाल ने हिमायत जारी रखने का ऐलान किया था। बात है अच्छा देश में प्रशासन देने की बात है, तो उस बात से हम लोग प्रसन्न है और बेसिकली हमने उनको समर्थन भी दिया था। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर ऐसी बुरी बात नहीं है। पार्टी को जो है मजबूत करेंगे हम भी अगर पहुंचेंगे पार्टी के अंदर, और समझता हूं कि इसमें ज्वाइन करनी चाहिए और लोगों भी कर रहे हैं और लोगों को भी करनी चाहिए। देश के अंदर जो एक वातावरण जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम लोग जो है आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकासद पर कारबंद है। दानिशमरान मानते हैं कि बोर्ड अपने दायरेकार में ही काम करे तो इत्तेहाद बाकी रहेगा। ताहम बोर्ड का किसी मौजू पर काम करना गैर मामूलात में शामिल तो हो सकता है, ताहम मामूल में नहीं। पेशेवर नुमाइंदा एहतशामुल हसन की ये खास रिपोर्ट। बोर्ड के जिम्मेदारों का कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कयाम का मकसद पर्सनल लॉ की दाखिली और बैरूनी हिफाजत करना है। इसके अलावा बहुत सारे मौजूआत पर काम करने के लिए दूसरी बहुत सारी तंजीमें हैं जो इस पर काम कर रही हैं। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सियासत से आजाद रखा जाना चाहिए। और इन सबसे बढ़कर हजरत मौलाना मिल्लतुल्लाह रहमानी थे। ये तमाम लोग जो थे, और इसके अंदर अलहाज मोहम्मद यूसुफ पटेल थे, अब्दुल सत्तार शेख थे, और इस तरह के जो लोग थे, इन लोगों ने जिस मकसद के लिए इसका कयाम किया था कि शरीयत इस्लामी जो है हिंदुस्तान में हर तरह के खतरों से, हर तरह की आलाइश से, हर तरह की बंदिश से महफूज रह सके, इसी को अपने लिए सामने रखना चाहिए। कुछ सियासी ताले आजमा जो हैं वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है जिनको वो उसको अपने सियासी मकासद की कार फरमाई के लिए और मकसद बरारी के लिए जरिया बना ले। ये नहीं होना चाहिए। अक्सर ये मुतालबा किया जाता रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दीगर मसाइल पर भी काम करना चाहिए, लेकिन बोर्ड के जिम्मेदारों का कहना है कि बोर्ड जिस दिन अपने दायरा कार से बाहर जाएगा उसी दिन बोर्ड के इत्तेहाद में दरार पैदा हो जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के दोनों डायमेंशन है, यानी ये कि खारिज से जो हमले होते हैं शरीयत पर, यानी ये कि हमारी अदालतों के बाद फैसले जो है वो शरीयत के खिलाफ जाते हैं। खुद हमारी हुकूमतें बाज़ मामलात में जो कानून साजी करती है वो शरीयत में इंटरफेरेंस होता है। तो ये जो खारिज से शरीयत में मुदाखलत होती है या